in force at the time of the commission of the act as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offenses. तो इसको जो है बेसिकली वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज नॉर के पहले वाला और दूसरा नॉर के बाद वाला, विच इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर पेनाल्टी. अब इसको जरा ध्यान से समझो. द स्टार्टिंग लाइन ऑफ आर्टिकल 20 सेज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस. प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. तो एक चीज क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लेना कि ऑल दीज थ्री protections are available only in criminal cases and not in the civil cases. ये क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है. तो पहली जो स्टार्टिंग लाइन में इसमें आप देखो ये क्लियर करता है अपने आप को. 20 सब क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. ऑफेंस के लिए एक बात याद रखना कि टर्म ऑफेंस इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 38 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट. मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इफ सम टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द given law, given act or the given legislation, then in that circumstances try to get the definition under the general clauses act. You will get maximum definitions under the general clauses act. So section 3 subclause 38 of the general clauses act, it defines the meaning of offenses, and what it says offenses as an act or omission. It may be an act and it may be an omission also, made punishable by any law for the time being in force. तो इसमें एक चीज याद रखना, ओमिशन हो सकता है, एक्ट हो सकता है, विच इज पनिशेबल. जैसे आप लोगों ने आईपीसी में कई सारे इलस्ट्रेशंस देखे होंगे, तो उसमें एक इलस्ट्रेशन ये होता है कि किसी को मारने के लिए खाना ना देना. ये क्या है? दिस इज एन ओमिशन. Whatever is your duty, you are not doing that, and passively you are trying to kill someone. So that is omission. So what it is saying, it is saying act or omission made punishable by any law. It should be punishable for the time being in force. कब? जबकि वो in force में हो. तो this is basically, remember article 20 subclause 1 is talking about conviction for the offenses which is defined under the general clauses act. फिर ये क्या कहता है? Except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20 sub clause 1 basically says, suppose any person is going to do something today, but today that particular act is not recognized as an offense. जो आज किया वो offense नहीं था. What has happened subsequently? Suppose tomorrow the government brings a legislation, the parliament pass a legislation, and what happens? The same act, which is not an offense today, it becomes an offense tomorrow. But the important issue is, can the person be punished for that act which was not as an offense on that particular day when it was done by that particular person? तो ये क्या कहता है कि नहीं, जिस दिन आपने उस एक्ट को किया, on that day you should do something that should be identified in the form of the offense. If that is not identified in the form of the offense, and subsequently through any legislation that is going to be declared as an offense, then you cannot be punished for that. So इसी को ex post facto law भी कहते हैं. आज जो किया अगर वो अपराध नहीं है और कल अपराध हो जाता है, तो कल आपको आपके पास्ट के किए हुए काम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता. This is ex post facto law, and remember this is applicable in the criminal cases, because in the case of criminal law the retrospective application of criminal law it never happens. ये नहीं होती है. retrospectively किसी भी criminal law को apply नहीं किया जाता, but in the civil cases the retrospective application of laws are possible. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब वोडाफोन का केस हुआ था, then the government has faced massive financial loss because of the Vodafone judgment. और प्रॉब्लम कहां पे थी? प्रॉब्लम थी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में. तो इनकम टैक्स एक्ट को सरकार ने अमेंड किया, एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी ही डिसाइडेड टू अप्लाई दिस अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली सिंस 60s. तो एक चीज याद रखना, टैक्स लॉ जो है ये आपका क्रिमिनल लॉ में नहीं आता.
टैक्स लॉ ये सिविल लॉ में आता है, बिकॉज इट इज अ सिविल लॉ, सो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज पॉसिबल। पर जैसे मान लो तो आप सारे लोगों को मालूम है, जैसे आप लोगों ने कई बार हो सकता है मैंने भी आपसे पूछा हो या नहीं पूछा होगा, तो आपको पता होगा कि इन द ओरिजिनल आईपीसी डाउरी डेथ वॉज नॉट डिफाइंड एज अ सेपरेट ऑफेंस। डाउरी डेथ जो है वो सेपरेट ऑफेंस नहीं था। डाउरी डेथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मर्डर, and for murder there is already a section prescribed, and that section is section 302. Now the question arises, when section 302 is already there which is dealing with murder, then what is the need of including section 304b? 304b is also murder, but section 304b has been included. And what is the reason? The reason is, in the case of murder, the burden of establishing the guilt of the accused is upon the prosecution. But in the case of 304b, there is a shifting of burden of proof from prosecution to the accused. डाउरी डेथ के लिए स्पेशल प्रोविजन क्यों लाया गया था? बिकॉज अ मर्डर इज गोइंग टू टेक प्लेस विद इन द फोर वॉल ऑफ अ हाउस, और जो डेथ हुई है जिसकी, दैट इज अ मैरिड वुमेन, तो ससुराल वालों ने मारा है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। एंड यू हैव रेड द रेलेवेंट सेक्शन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो। तो 304 बी लाने का पर्पस क्या था? 304 बी, इट बिकम्स मोर स्ट्रिंजेंट इन कंपैरिजन टू 302। द रीजन बीइंग, इन द केस ऑफ 304 बी देयर इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। तो यहाँ पे 304 बी में accused will have to prove that he is innocent, while in the case of 302 the prosecution will have to prove that the accused is guilty. तो 304 भी बन गया एक stringent प्रोविजन इन कंपैरिजन टू 302। और आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडवर्सेरियल एंड द इंक्विजिटोरियल सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड अ लॉट, बट इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रो एक्यूज्ड नहीं होता। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस। और यहाँ पे क्या होता है कि कितनी भी चीजें एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जा रही हो, उसको यही माना जाता है कि वो इनोसेंट है इन टर्म्स ऑफ एडवर्सेरियल सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटली इन मोस्ट ऑफ द कंट्री वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड सिस्टम। तो 304b जो है इसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जबकि इन द नॉर्मल क्रिमिनल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन। अब मान लीजिए ये जो आपका आईपीसी में 304b ऐड किया गया, इट वाज एडेड ऑन 19 नवंबर 1986, यानी 19 नवंबर 1986 के पहले जितनी डाउरी केसेस होते थे, ये केसेस आपके होते थे 302 में कवर होते थे। दे ऑल यूज्ड टू बी कवर्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, बट ऑन 19 नवंबर 1986 a special provision related with dowry death has been included. अब एक बात बताओ, जिसका पहले जिसने ये क्राइम कर दिया है और जिसका कन्विक्शन हो चुका है, उसको क्या आप नए तरीके से कन्विक्ट कर सकते हो इसमें कि नहीं इसमें पनिशमेंट ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड है या इसका इसमें कन्विक्शन होना चाहिए? इज इट पॉसिबल? रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन before 19th November 1986 that murder was committed, at that point of time dowry death was not prescribed as a different offense. वो डिफरेंट ऑफेंस के रूप में प्रिस्क्राइब्ड नहीं थी, वो बाद में अगर प्रिस्क्राइब्ड हो गई है तो अब फिर से उसका कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो जिस दिन आपने काम किया उस दिन वो ऑफेंस था कि नहीं, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड। इसीलिए इसका जो दूसरा पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, ये क्या कहता है? नॉर बी सब्जेक्ट टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ग्रेटर पेनाल्टी या ग्रेटर पनिशमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता। ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता का मतलब क्या होता है? जैसे यू ऑल हैव सीन द केस ऑफ निर्भया। निर्भया के केस में आपने देखा होगा, वन ऑफ द एक्यूज्ड वाज माइनर, वन ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन वाज अ माइनर। वो माइनर था, उसको माइनर होने का बेनिफिट मिला। सब्सिक्वेंटली द लॉ वाज चेंज, और अब लॉ में चेंज क्या कर दिया गया है कि 16 ईयर्स से ऊपर जो लोग होंगे, whether they should be treated as adult or they should be treated as minor, it will be decided on the basis of their action. ये उनके एक्शन की, एक्ट की बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, मान लो सब्सिक्वेंटली जैसे हम लोगों को पता है कि आईपीसी में अमेंड हो गया और ये कहा गया कि 16 साल के ऊपर के बच्चों को भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है इफ द नेचर ऑफ देयर एक्ट इज वेरी हीनियस। बट क्या इसमें हम अब उस निर्भया के जो माइनर ऑफेंडर था उसको क्या हम इसमें फिर से ट्राई कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 इट इज नॉट पॉसिबल। ही वॉज tried and he was convicted according to juvenile justice act according, उसको रिफॉर्म होम में भेज दिया गया because he was a minor, उसको नॉर्मल आईपीसी के तहत जेल में नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन अब 16 साल से ऊपर के 16 से 18 के बीच के जो बच्चे हैं जो हीनियस क्राइम करते हैं उनको अगर हम सीरियस ऑफेंडर मान करके जेल में भेज करके एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं, सो सेम पनिशमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर द ऑफेंडर ऑफ द निर्भया केस बिकॉज दिस इज अ ग्रेटर पेनाल्टी। तो इसमें ग्रेटर पेनाल्टी की जब ये बात कर रहे हैं तो आप एक चीज याद रखना, जितना जिस दिन क्राइम किया गया था उस दिन क्या punishment prescribed था। Suppose tomorrow the government is going to enhance the punishment, then remember in that circumstances that enhanced punishment cannot be awarded to the person because on that particular day that amount of punishment was not prescribed for that particular offense। जिस दिन किया था, पहली बात उस दिन वो क्राइम था कि नहीं था, दूसरी बात अगर क्राइम था तो उसके लिए कितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड था। अगर पनिशमेंट जो है बढ़ा दिया गया है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट का उसको अवॉर्ड नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर पनिशमेंट घटा दिया गया है, बिकॉज रिमेंबर 20 सब क्लॉज 1 very clearly says subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law. It is not talking about what will happen when the penalty is going to be reduced. तो इससे रिलेटेड एक केस आया था और इस केस का नाम है आपका द नेम ऑफ द केस इज रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द केस एंड द साइटेशन इज AIR 1965 SC 444, AIR 1965 SC 444। इस केस में क्या है, ये जो ऑफेंडर है इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इसको दिया गया 31 मई 1962 को, ठीक है। उस समय क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ दिस पनिशमेंट वाज गिवन। सब्सिक्वेंटली द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1962 was passed. अब according to the probation of offenders act, because of his age he cannot be sent to the jail. उसको रिग्रेस पनिशमेंट नहीं हो सकता और जेल में नहीं भेजा जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बेनिफिट उसको अवेलेबल नहीं था बाद में उसको वो बेनिफिट अवेलेबल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अर्लियर he was punished with regress imprisonment. Now after the probation of offenders act he cannot be sent to the jail, उसको रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि whether this benefit should be given to the accused or not. तो in this case, in the case of Ratan Lal versus state of Punjab, the Supreme Court has held that the benefit should be given to the accused person because 20 sub clause 1 prohibits greater penalty and not the lesser punishment। क्योंकि 20 सब क्लॉज 1 बहुत साफ साफ कहता है कि ग्रेटर पेनाल्टी नहीं देने दी जाएगी, लेसर पनिशमेंट जो होता है वो अगर चेंज होकर के हो जाता है देन द बेनिफिट ऑफ लेसर पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन। सो रिमेंबर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो मैंने एनहांसिंग द पेनाल्टी एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्ट व्हिच हैज बीन डन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, whether on that particular date that was recognized as an offense or not. This is basically ex post facto law. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। केस का फैक्ट ये है कि पार्लियामेंट ने, आप सबको पता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया और इसका सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रिजम्पशन किस चीज की है? प्रिजम्पशन यहाँ पे ये है कि if there is you are not able to establish the relationship between your income and your assets, तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि you have misused your office. This is the Prevention of Corruption Act. Disproportionate assets का केस जहां पे होते हैं, either you will have to prove it that there is a reasonable relationship between your income and your assets. But if you are not able to
prove that particular relationship, then according to the Prevention of Corruption Act, it can be presumed that this wealth has been generated illegally. इसको illegal तरीके से या corrupt practices के through गेन किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इस केस में सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 को चैलेंज, एक व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ और केस का नाम है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो व्हाट सज्जन सिंह इज क्लेमिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, ही इज सेइंग कि द डेट ऑन विच द करप्शन एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, उस दिन के बाद से जो एसेट्स एक्यूमुलेट हुई हैं, only those assets should be evaluated, that whether they are in proportion to the income of a particular person or not. लेकिन उस डेट के पहले जो चीजें जनरेट हो चुकी है या जो इनकम जनरेट हो चुकी है, उसको इसके परव्यू में नहीं लाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, यहाँ पे जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है तो यहाँ पे वेल्थ की कैलकुलेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे पनिशमेंट को एनहेंस या रिड्यूस करने की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि वेदर यू हैव मिसयूज्ड योर ऑफिस और नॉट, एंड इफ यू हैव मिसयूज्ड योर ऑफिस देन हाउ मच प्रॉपर्टी यू हैव जनरेटेड इलीगली। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में over section 5 subclause 3 of the Prevention of Corruption Act, you cannot claim protection of article 20 subclause 1। क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखना, जैसे ये एक सवाल आया, इसमें आप सब कुछ छोड़ दो कि लॉ क्या कहता है, लॉ क्या नहीं कहता, सबसे पहले आप इक्विटी लगाओगे, और इक्विटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि किसी को भी अनजस्टिफाइड तरीके से रिच नहीं होने देना चाहिए। तो अगर कानून ये कहे कि नहीं भाई आज हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू किया, लेकिन आज से पहले जो आपने इलीगली अर्न किया था वो तो लीगलाइज हो गया, लेकिन आज के बाद जो करोगे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आएगा, इट मींस इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू वैलिडेट द इलीगल एक्टिविटीज, यू आर गोइंग टू लीगलाइज द इलीगल एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट का नहीं है, यहाँ पे जिस पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो उस पूरे टर्म में आपने जितनी इनकम कमाई है वो इनकम अनफेयर तरीके से कमाई गई है या नहीं कमाई गई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। सो हियर यू कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। प्रोटेक्शन को आप क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं, इसको हमेशा याद रखना कि the purpose or the objective of the legislation is more important in comparison to the words। अगर यही इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया होता तो आपने क्या किया होता, एक पर्टिकुलर टाइम तक जितने भी लोग करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनके एक्शंस को आपने वैलिडेट कर दिया होता। तो एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस जजमेंट आई एम डिस्कसिंग दिस जजमेंट, बिकॉज इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली सेड that a statute cannot be said to be retrospective because a part of the requisites for its action is drawn from a time antecedent to its passing। तो जो पास एक्ट में, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और मुझे आपको आई थिंक यू आर अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, या जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे लाल किले वाली, कॉन्स्पिरेसी इज अ इनक्वाइट क्राइम, certain offenses are continuing offenses। आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा, the part of the same transaction and that becomes relevant। So you are collecting money through illegal means continuously, so everything is the part of the same transaction, you are involved in the illegal practices, and here in such type of cases a person cannot claim the protection of article 20 subclause 1। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपका है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। इसमें एक चीज और याद रखना, ये प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन से, कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स। ट्रायल मान लो किसी का चल रहा है और उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, मैं प्रोसीजर की बात कर रही हूं, एनहेंसिंग पेनल्टी में, जैसे मान लो किसी का ट्रायल चल रहा है और प्रोसीजर को अमेंड कर दिया गया, प्रोसीजर्स के लिए 20 सब क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन नहीं होगा, इसको याद रखना। ये कन्विक्शन के लिए और अमाउंट ऑफ या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए ये प्रोटेक्शन है, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्रोटेक्शन फॉर द प्रोसीजर्स। सो सब्सिक्वेंटली सपोज अ ट्रायल, अ पर्सन हैज डिड समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, अ ट्रायल इज व्हिच इज लीगली रॉन्ग, the trial is going on, suddenly the government has changed the procedures, then the person
कैन नॉट क्लेम दैट द प्रोसीजर, सपोज करो रिग्रेस कर दिया प्रोसीजर को, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ये प्रोसीजर हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें याद रखना 20 सब क्लॉज 1 कन्विक्शन को कन्विक्शन के लिए प्रोटेक्शन देता है, प्रोसीजर के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता है. So this is something which is very, very important. So I hope कि things are clear to you. This is Article 20 subclause 1 and this is ex post facto law. तो कभी कभी इसको ex post facto law के नाम से ही पूछते हैं. And suppose you are getting any question in this name, then be very clear that they are talking about Article 20 subclause 1. वो 20 subclause 1 के बारे में पूछ रहे हैं. इसको हम थोड़ा तीनों डिस्कस कर लेते हैं and then I will take question answer session. मैम ट्रायल वाली बात समझ नहीं आई थोड़ी सी. प्रोसीजर की बात हम कर रहे हैं, प्रोसीजर से प्रोटेक्शन नहीं देता. मान लो कि किसी का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल देखो जब आप ट्रायल चलता है तो ट्रायल में आप प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो ना, सीआरपीसी फॉलो होती है. अब मान लो सीआरपीसी को अमेंड कर दिया गया, अभी उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, अब वो ये नहीं कहेगा कि अमेंडेड सीआरपीसी हमारे ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि 20 सब क्लॉज 1 का जो प्रोटेक्शन है वो प्रोसीजर्स के ऊपर नहीं है, वो कन्विक्शन के ऊपर है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रोसीजर से तो कन्विक्शन होगा ना अक्यूज्ड का. प्रोसीजर से कन्विक्शन जरूर हो जाएगा, थोड़ी ये जरूरी थोड़ी ना है. Ma'am, you meant to say that the section Article 20 Clause 1 it will apply only substantive law, not procedural. Exactly. Yes, you can say this. You can say this. It will not apply on procedural laws because it very clearly says no person shall be convicted of any offense. ये कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. जिस दिन आपने वो काम किया था वो ऑफेंस था कि नहीं था, अगर नहीं था और सब्सिक्वेंटली हो जाता है तो आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता. और एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट से प्रोटेक्ट करता है. पहले कम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब था, जैसे मान लो किसी ने कोई ऑफेंस किया, उस समय उसके लिए 2 महीने का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, बाद में अमेंड होकर के 6 महीने का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, बाद में पढ़ करके वो 1 साल हो गया, तो अब उसको 1 साल का पनिशमेंट नहीं दे दिया जाएगा, उसको 6 महीने का ही दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी निर्भया का केस बताया. सो इन अ वे डेफिनेटली यू कैन से दैट इट विल बी एप्लीकेबल ऑन सब्सटैंटिव लॉ, बट दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन प्रोसीजरल लॉज. बात समझ में आई? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now let's come to the second subclause 2, and subclause 2 is nemo debit bis vexari भी इसको बोलते हैं, इसको डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन भी बोलते हैं. क्या कहता है? No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. इसको जरा ध्यान से समझना. No person shall be prosecuted and punished. तो एक चीज इसमें याद रखना, प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड नहीं है. दिस इज प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, मींस द प्रोसिक्यूशन व्हिच हैज बीन एंडेड इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. जैसे मान लो किसी का प्रोसिक्यूशन तो आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पुलिस का रोल आता है. सेकेंड आपका प्रोसिक्यूशन होता है जिसमें ट्रायल चलता है, और थर्ड आपका जो होता है वो कन्विक्शन होता है, या फिर वो छोड़ दिया जाता है ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट पे या अदरवाइज. थर्ड पार्ट वो होता है. तो यहाँ पे यानी प्रोसिक्यूटर हो गया, जुडिशरी हो गई और पुलिस हो गए, ये तीनों मिलके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बनाते हैं, राइट. तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. तो सपोज करो देयर इज अ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन, बट इन दैट प्रोसिक्यूशन अल्टीमेटली ही हैज बीन एक्विटेड, छूट गया वो, तो क्या दोबारा उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 हो सकता है. क्यों हो सकता है? बिकॉज द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन एंडेड इन द फॉर्म ऑफ कन्विक्शन. तो ये प्रोटेक्शन किसको देगा? वो प्रोसिक्यूशन जो कन्विक्शन में एंड हो जाता है. जैसे आप लोगों ने इसका केस देखा था ना, क्या नाम है इस लड़की का, आरुषि तलवार का. आरुषि तलवार के केस में अगर आप देखो तो आरुषि तलवार का केस बहुत ही फ्लिप फ्लॉप वाला केस है. एक बार किसी और लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन जाता है, और जो मतलब यूपी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की जो रिजल्ट है वो एकदम अलग है. सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन के आउटकम है वो एकदम अलग है. सीबीआई ने बता दिया कि पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं. और अगर आप इसमें देखोगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन दिस वे, बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट. इन सुशांत केस में तो अभी खैर कुछ आया नहीं है. द इम्पोर्टेंट इशू इन द केस ऑफ आरुषि तलवार इज द कन्विक्शन हैज बीन डन, कन्विक्शन ऑफ द पेरेंट्स.
conviction of the parents has been done totally based upon section 11 of Indian Evidence Act, which talks about probability. वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल, अगर आप लोग को याद हो। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में एक चीज याद रखना, जब आपको कहीं समझ में ना आए कि कौन सा सेक्शन लगेगा, तो जो सेक्शन ज्यादातर केसेस में एप्लीकेबल होता है वो सेक्शन 11 होता है, जो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करता है। प्रोबेबिलिटी की बात कैसे थी कि घर में 4 लोग हैं, 3 लोग चारों घर के अंदर हैं, ये ना कोई अंदर से बाहर आया ना कोई बाहर से अंदर गया, और 2 लोग मरे पाए गए, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि जो 2 लोग बचे थे उन लोगों ने ही ये मर्डर किया था। तो जैसे आपका जब ये एविडेंस एक्ट होता है या जब आप एविडेंसेस की बात करते हो, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है कि हाउ मच वैल्यू शुड बी गिवन टू द एविडेंस। जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उन्होंने बोला कि मियर सस्पिशन कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन unless and until there is some proof to establish the guilt। कुछ सबूत होना चाहिए। पहले आप लोग को याद होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था, फिर उसको डाइल्यूट कर दिया गया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इवन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आल्सो देयर आर मेनी केसेस वेयर द कोर्ट्स हैव कन्विक्टेड, बिकॉज नाउ द क्रिमिनल्स आर आल्सो बिकमिंग वेरी स्मार्ट। अब सुशांत सिंह राजपूत का एक केस है, ये इतना अजीब केस है, समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या था, या मर्डर है कि सुसाइड है, या आरुषि तलवार का जो केस है। अब इन केसेस की कभी मिस्ट्री खुलेगी कि नहीं खुलेगी, वी डोंट नो, बट दीज केसेस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, जैसे आप लोग को याद होगा, पता होगा कि इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। लिमिटेशन एक्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। और आप लोगों ने आरुषि तलवार का केस मैंने यहाँ डिस्कस क्यों किया, सीबीआई ने बोला था कि हम क्लोजर रिपोर्ट लगाते हैं, वी कैन नॉट सॉल्व दिस केस, सो वी आर गोइंग टू फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट, इट मींस द केस शुड बी क्लोज्ड। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, इसको आप री इन्वेस्टिगेट करो। कोर्ट ने उस केस को रीओपन कर दिया। अब मान लो क्या होता है कि एक व्यक्ति का ट्रायल चलता है, and on the basis of the benefit of doubt or on the basis of lack of evidences the person has been acquitted। कल को मान लो कुछ ऐसे सबूत आते हैं which can be very helpful in establishing his guilt, तो क्या रीट्रायल हो सकता है? तो क्या उस कंडीशन में एक्यूज्ड इस बात का बेनिफिट लेगा कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, which is a fundamental right, that is going to be violated if the retrial begins or if the trial begins। तो इसमें एक चीज याद रखना, उसका अगर एक्विटल हो गया है and subsequently investigating agencies receive some evidences on the basis of which the person can be convicted, तो fresh trial शुरू हो सकता है, and accused will not be in the position to take the benefit of article 20 sub clause 2। इसलिए नहीं ले सकता because his prosecution was not ended to the conviction। प्रोटेक्शन कब मिलेगा? when the prosecution has been ended to the conviction। ठीक है ना। और एक दूसरी चीज में याद रखना, for the same offense more than once, for the same offense it means a particular act, if a particular act is identified, या मान लो एक ही क्राइम किया गया है but that has been identified as an offense under the different legislation, तो उसी एक एक्ट पे आपके अलग अलग धाराएं अलग अलग लेजिस्लेशंस के लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं या जो क्रुएलिटी के केसेस होते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्रुएलिटी भी लगाते हैं, यानी आईपीसी भी लगा रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लगाते हैं। मान लो डाउरी का भी लगा दिया तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगा देंगे। तो एक आदमी ने अगर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और उससे दहेज की डिमांड करता है, ये एक ही एक्ट है, लेकिन उस एक्ट को कवर जो है 3 अलग अलग लेजिस्लेशन में अलग अलग ऑफेंसेस के फॉर्म में किया गया है। तो इसमें एक चीज याद रखना, उसका तीनों अलग अलग लेजिस्लेशन में ट्रायल चलेगा। और ये जो आपको सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 जो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस के लिए दे रहा। यानी मान लो सपोज करो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा, आपका आईपीसी लगा और आपका लगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अब इसमें क्या होगा, अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही कैन नॉट बी रीट्राइड, अंडर द IPC 498 retrial will not be possible, under the this thing क्या बोलते हैं इसको, तीसरा कौन सा मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तीसरा अच्छा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट,
ही कैन नॉट बी रीट्राइड। लेकिन वो ये बोले कि नहीं, काम तो मैंने एक किया तो हमारे ऊपर तीन तीन जो है अलग अलग लेजिस्लेशन या एक्ट क्यों लगा रहे हो? तो एक ही एक्शन जो है वो तीन अलग अलग लेजिस्लेशन में तीन अलग अलग ऑफेंसेस के फॉर्म में आइडेंटिफाइड है, तो तीनों में उसका अलग अलग ट्रायल चलेगा, लेकिन एक एक्ट में दो बार ट्रायल एक ऑफेंस के लिए नहीं चलेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तुम लोग को? क्रिमिनल केस में एक एक ऑफेंस के लिए दो बार ट्रायल नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक ही एक्ट अलग अलग लेजिस्लेशंस में ऑफेंसेस के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे मान लो कोई स्मगलिंग करता है तो स्मगलिंग में फेरा भी उसके ऊपर लगेगा, उसके ऊपर कॉफे पोसा भी लग सकता है, स्मगलिंग से रिलेटेड अगर कोई और लेजिस्लेशन है तो वो भी लग सकता है। तो जितनी चीजें उस जितने रिलेटेड लेजिस्लेशन है सब उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, एक्ट उसका एक ही है। You are getting my point, and that is Article 20 subclause 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. एक ऑफेंस के लिए दो बार उसका प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग लेजिस्लेशन में अगर वही एक्ट अलग अलग ऑफेंसेस के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है तो अलग अलग लेजिस्लेशंस में अलग अलग ऑफेंसेस के लिए उसका सेपरेट ट्रायल चलेगा। एंड दिस, हाँ बताओ मैम। सपोज दैट कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के ऊपर कन्विक्शन होता है, मतलब अगर मान लो मर्डर का किया है, और जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डाउरी का हो गया, जो भी है, तो मैम अगर वो दोनों जो सेक्शन अप्लाई होते हैं, तो अगर एक में जो पनिशमेंट है मैम अगर ज्यादा होगी या एक में कम होगी, सपोज दैट मान लो आप डाउरी की एक में डेफिनेशन है उसमें 3 साल की सजा है और एक में डोमेस्टिक वायलेंस में 5 मैम, में क्या जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होगा वो लगेगा या कम वाला लगेगा? देखो उसमें उसमें ना जजेस के ऊपर होता है। कई बार तुमने देखा है वो अलग अलग कहते हैं कि चलेंगे, और कई बार कहते हैं तीनों को मिला करके जो मैक्सिमम होगा वो दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आया? जैसे तुम लोग ने अमेरिका वगैरह में देखा होगा 120 साल की सजा, 200 साल की सजा हो गई। ये कैसे होता है? एक ही एक्ट किया है, वो अलग अलग लेजिस्लेशंस में अलग अलग क्राइम के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसमें जो जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे मान लो डाउरी के लिए 7 साल कर दिया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 3 साल कर दिया, आईपीसी में क्रुएलिटी के लिए 4 साल कर दिया, तो आपके 6 4 10 3 13 साल हो गए मान लो। तो 13 साल में क्या, अगर उन्होंने बोला 1 साल चलेगा तो जो मैक्सिमम वाला होता है उसमें सब कवर हो जाएंगे, यानी 6 साल में सब आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग चलेगा तो फिर वो 13 साल जेल में रहेगा। ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट कि उसको कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस मैम, यस, क्लियर है ना? वो डिसाइड करेगा। अगर वो बोलेगा अलग अलग चलेगा तो पहले एक की सजा भुगतेगा, फिर दूसरे की भुगतेगा और फिर तीसरे की भुगतेगा। और अगर बोलेगा कि एक साथ चलेगा तो जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट होता है उसमें सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो 6 साल वाला पनिशमेंट हुआ उसमें 3 साल का भी कन्विक्शन कवर हो गया और 4 साल का भी कन्विक्शन कवर हो गया। क्लियर? ओके। But if accused is हाँ but if accused is acquitted, then उसी के एक्ट में दोबारा केस चल सकता है ना? बिल्कुल चल सकता है। एक्विटल किस बेसिस पे हुआ? मान लो सबूत नहीं मिले, ठीक है, वो एक्विट हो गया। कल को मान लो सबूत मिल गए, जैसे मान लो कि अभी ये सुशांत सिंह राजपूत का केस है, ये पुलिस ने स्टैब्लिश कर दिया कि ये सुसाइड है। कल को मान लो कहीं से कोई वीडियो ऑडियो कुछ मिल गया, जैसे बहुत सारी चीजें चल रही थी उस केस में, पता नहीं, वो भी बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस केस है जिसमें एक डार्क वेब का केस चला, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की चीजें बोली। इसीलिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैं अभी तुमसे पूछूं कि राइट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ राइट मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राइट का मतलब क्या होता है? पहले मुझे ये डिस्कस करना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया कि एक्चुअल में राइट का जूरिस्प्रूडेंस क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? क्या मतलब होता है? मैम अधिकार राइट है, हाँ, मैम, सबके अधिकार हुई। अधिकार, यस मैम। अधिकारी बोलते हैं ना कि ये मेरा अधिकार है। अधिकार का मतलब ये मुझे चाहिए, यही होता है ना? अधिकार का मतलब मुझे ये चाहिए क्योंकि ये संविधान में दिया गया है तो मुझे ये मिलना चाहिए। कल भी हम लोग फ्रीडम ऑफ एंटाइटलमेंट।
एग्जैक्टली कल भी हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तब भी ये बात अथॉरिटी टू डू सम एक्शन है मेरा कि मैं प्रोटेस्ट करूं या मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, या क्या मेरे मीडियम पे रोक लगाई जा सकती है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, पता नहीं तुम लोग और ये बड़ा अच्छा रिसर्च का टॉपिक है। जब आप राइट को हम कहते हैं ट्रांसलेट करो तो हम कहते हैं अधिकार, लेकिन जब आप अधिकार के जुरिस्प्रूडेंस को देखते हो, बिकॉज रिमेंबर हिंदी इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, और इसमें जो शब्द बनते हैं ना वो क्यों इस तरीके से लिखे गए हैं, उनकी इस पे पूरा का पूरा व्याकरण का एक साइंस है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पूरा का पूरा इसको लिखा है कि इस चीज को ये क्यों कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एक एक शब्द के सैकड़ों पर्यायवाची होते हैं, हजार हजार तक होते हैं, लेकिन हर पर्यायवाची एक पर्टिकुलर पर्यायवाची का हर शब्द एक पर्टिकुलर सेंस में यूज होता है। जैसे पैर, चरण, पद, ये सारी चीजें क्या है, लात, ये सब क्या है, ये अलग अलग सेंस में यूज होती है, लेकिन बात की जा रही है पैर की। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो लेग कहेंगे या फीट कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप हिंदी में इसको अलग अलग टर्म यूज करते हो इसके सेंस चेंज होते हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार का हिंदी में जो मतलब ये होता है वो ये होता है कि मैं इस चीज को ऑब्टेन करने की योग्यता मेरे अंदर है और इसलिए मैं इसका अधिकारी हूं। तो अधिकार का मतलब, जैसे आप लोगों ने महाभारत देखी, क्योंकि महाभारत इज अ वेरी गुड टेक्स्ट फॉर जुरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज दुर्योधना, व्हाट दुर्योधन इज सेइंग कि ये इस सिंहासन पे मेरा अधिकार है। अधिकार क्यों है, बट ही इज नॉट एलिजिबल, और इसीलिए महाभारत हुआ। महाभारत क्यों हुआ, एक व्यक्ति उस चीज की डिमांड कर रहा है जिस चीज को वो डिजर्व नहीं करता। तो अधिकार का मतलब होता है फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, कि मैं इसके योग्य हूं। इसीलिए अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आपको सिंहासन बत्तीसी में राजा भोज की कहानी सुनाई थी, और मैंने आपको बोला था कि राजा भोज जैसा महान राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि उसको लगा कि वो सिंहासन पे बैठने के योग्य नहीं है। राइट, तो ये क्या होता है, अधिकार का मतलब क्या होता है, यू शुड गेट समथिंग व्हेन यू कैन हैंडल समथिंग। राइट का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया में जो राइट का जुरिस्प्रूडेंस है कि आई कैन हैंडल इट और नॉट बट आई वांट इट। इसीलिए क्या होता है, जो क्योटिक सिचुएशन होती है वो इसीलिए क्रिएट होती है। और कल मैं यही बात आप लोग को बता रही थी कि हमारे यहाँ पे ये ग्रूमिंग नहीं की जाती कि जो राइट्स हमें दिए गए हैं इन राइट्स को हमें कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें ये तो मालूम है कि हमारा राइट है, बट हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जहां पे हमें ये बताया जाए कि इस राइट को कैसे एक्सरसाइज करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अधिकार। और जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आप देखना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हो ना, या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, तो पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसीलिए मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूं कि जिन चीजों पे हम आर्ग्यू इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को लेकर के कोर्ट में करते हैं, वही चीजें अगर हिंदी में ट्रांसलेट की जाए तो पूरा का पूरा जजमेंट चेंज हो सकता है। और इस पे आज तक किसी ने काम नहीं किया, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कर सकती हूँ कि अगर इसको चेंज किया जाए, मैं खुद आपको इंटरप्रिटेशन चेंज करके दिखाऊंगी। आप अभी देखो, मैंने आपको बताया कि राइट और अधिकार कितने ज्यादा डिफरेंस है एक दूसरे से। अधिकार का मतलब डिजर्व एंड देन डिजायर, और राइट का मतलब कि आई डिजर्व और आई डोंट डिजर्व, आई वांट दिस एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। सो व्हेन इफ आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर समथिंग एंड आई एम गेटिंग इट, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू मिसयूज इट। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, लोग यूट्यूब चैनल हो गया या सोशल मीडिया हो गया, उसमें फेक नाम से, या कई बार जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उसमें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, यानी अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उस नाम पे पोस्ट करते हैं। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाना। तो ये क्या है, उनके लिए तो एक अर्निंग का स्रोत हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल बाकी लोगों पे क्या इंपैक्ट डालती है, क्या उनको इसका रियलाइजेशन होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन is not important, constitutionalism is important, where the meaning and the jurisprudence of each and every word plays a very very important role. तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। और इसीलिए चाहे आप कोई भी फंडामेंटल राइट आप डिस्कस करो, सबसे पहले आपको उस फंडामेंटल राइट का उद्देश्य जरूर मालूम होना चाहिए कि ये किस लिए हमें दिया गया है, और उसका जुरिस्प्रूडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा था, पनिशमेंट एक्विटल को लेके बोल रहा था ना कोई, कि अगर एक्विटल हो जाएगा तो क्या होगा, यही पूछ रहा था ना कोई? यस मैम।
अगर एक्विटल हो जाएगा ना बेटा और दोबारा सबूत मिलता है, तो सिंपल सा क्रिमिनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि द गिल्टी शुड नॉट गो अनपनिश्ड. So suppose there are not sufficient evidences to establish his guilt, but tomorrow the investigating agencies have collected new evidences, and on the basis or with the help of those evidences, the guilt of that person can be established, then the trial will begin again. और ये 20 सब क्लॉज 2 का वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो पनिशमेंट में एंड नहीं हुआ, एक्विटल में एंड हुआ था. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. लेकिन आपका ये एक चीज जरूर कहता है कि एक ऑफेंस में अगर आपका ट्रायल हो गया तो आप ये कहो कि वही कोर्ट दोबारा उसका ट्रायल करे, क्योंकि इसको जो है या किसी और कोर्ट में चले जाओ जिसको कि आप रेस जुडिकेटा बोलते हो कि यहाँ कम पनिशमेंट मिला, अब हम दूसरी कोर्ट में सेम लेवल की जाकर के इसके पनिशमेंट को बढ़ाएंगे. दैट इज नॉट अलाउड. So, you know, sometimes to a certain level, you can also say that they're talking about the res judicata. If you want to enhance the punishment, then you can file an appeal, and the appellate court will decide that whether the quantum of the punishment is appropriate, whether it should be enhanced or whether it should be reduced. तो ये तुम्हारा जो है 20 सब क्लॉज 2 है. एक चीज इसमें और याद रखना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. Again, I am repeating, the prosecution and punishment means it is talking about the criminal cases. तो सिविल लाइबिलिटीज में सिविल केस के लिए कोई बार नहीं है. जैसे मान लो डेफेमेशन है, डेफेमेशन इज अ क्रिमिनल रॉन्ग एज वेल एज सिविल रॉन्ग. तो आप क्रिमिनल रॉन्ग में जाओगे और लेकिन डैमेजेस के लिए आप सिविल में जा सकते हो कि हमें इसमें इतना कंपनसेशन दिया जाए, मेरी रेपुटेशन को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया तो हमें इतना करोड़ रुपए या इतना लाख रुपए ये देंगे. तो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों अलग अलग लेजिस्लेशन, दोनों अलग अलग लॉज हैं. तो यहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में साथ में जाने में कोई बार नहीं है, क्योंकि दोनों में लाइबिलिटीज अलग अलग तरीके से फिक्स होती हैं. समझ में आया ना. और 20 सब क्लॉज 2 जो है ये एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल केसेस के, नॉट ओनली 20 सब क्लॉज 2 बट एंटायर आर्टिकल 20, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होता है. ये सिविल केसेस पे अप्लाई नहीं होता है. एंड दिस इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट. एंड द थर्ड वन इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3. आए इस पे पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ इसको रीड करूंगी क्योंकि टाइम हो गया. अभी मेरी एक मीटिंग भी है, मैं इसको कल खत्म कर दूंगी तुम लोगों का ये 20 जो है आर्टिकल. ठीक है, इसको मैं पढ़ रही हूँ. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3. नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. एक्यूज मतलब जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूज्ड? इंडियन एविडेंस एक्ट आप charge has been framed. मैम Charge has been framed against him, ma'am. चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड. लगाया गया हो मैम अलीज्ड एक्यूज जिस पे मैम इल्जाम लगाया गया हो लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ ना. क्रिमिनल केस पढ़ा है तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है ना तुम लोगों ने. एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूजेशन. जैसे तुम लोगों ने एक देखा अलेज करना, जैसे पॉलिटिक्स में लोग अलेज करते रहते हैं, या नॉर्मल लाइफ में भी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं. एलिगेशन एक्यूजेशन नहीं होता. फॉर्मल एक्यूजेशन जो होता है सबसे पहले तब आता है जब किसी व्यक्ति का एफआईआर में नाम आ जाता है. एग्जैक्टली मुलजिम बोलते हैं. ये मुलजिम है. मुलजिम भी नहीं है, इसको अभियुक्त बोलते हैं. मुलजिम नहीं बोलते, अभियुक्त बोलते हैं. अभियुक्त क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर अभियोग लगा हुआ है. समझ में आया ना. तो एक्यूजेशन, एक्यूज का मतलब ये हुआ द पर्सन अगेंस्ट हुम देयर इज अ फॉर्मल एक्यूजेशन. इसका मतलब उसका एफआईआर में या कहीं पुलिस ने कुछ लिखा है जहां पे उसका नाम आ चुका है. बाकी जो हम बोलते हैं वो एलिगेशन होते हैं. राइट. तो इसमें ये देखना, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. तो पहली चीज क्या होती है? उसके ऊपर एक्यूजेशन होना चाहिए. जैसे मान लो कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो उसके ऊपर एक्यूजेशन क्या है? कि ये करप्ट है. ठीक है. या फिर इसके ऊपर हाँ बिल्कुल बन सकता है. जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एफआईआर फाइल हुई. ठीक है. एफआईआर का मतलब क्या होता है? तो पुलिस एफआईआर खुद केस रजिस्टर करती है, या कोई आ करके पुलिस को लिखवाता है कि भाई ये केस मेरे अगेंस्ट में हुआ है. अब लिखवाएगा तो दो चीजें होती हैं. एक तो होती है ज्ञात लोगों के, अगर आप लोगों ने देखा होगा. एक होती है अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करी.
तो एक होता है नॉमिनेटेड एफआईआर की भाई 5 को मैंने पहना, तो 3 तो हो गए जिनका कि नाम है, 2 हो जाते हैं अननोन, उनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया जाता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सवाल अभी इन्होंने पूछा, अच्छा सवाल है ये। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम लोग को, एक बच्चे का अपहरण हो जाता है और ये सही केस है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करी कि पता नहीं है कि कौन है, ठीक। अब उसमें एक व्यक्ति जो है, जो कि उस बच्चे की बड़ी बहन का हस्बैंड है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है उस केस में ले रहा था और रोज आके इंक्वायरी करता था कि कुछ पता चला क्या। जो लोग बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो सबसे पहले सस्पिशन की सर्किल में आते हैं। वो रोज आके इंक्वायरी करता था कि कुछ पता चला क्या कि किसने किया है। धीरे धीरे पुलिस को क्या पता चला कि ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें पहले एफआईआर में कहीं उसका नाम नहीं है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और लोगों के ऊपर पुलिस का शक बढ़ता जाएगा, वो उस कैटेगरी में आते चले जाते हैं। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उनके खिलाफ चार्जशीट बना, उनको अभियुक्त बनाएगी, अभियुक्त बना करके उनके खिलाफ फिर चार्जशीट फाइल करेगी पोस्ट इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। तो बाद में भी किसी को अभियुक्त बनाया जा सकता है। समझ गए? मैम एक क्वेश्चन है मैम यहाँ पे, मतलब हाँ डाउट है बताओ। मैम। मैम ये सब सेक्शन 2 में मैम, सब आर्टिकल 2 में मैम कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब मैम ये मान लीजिए एक बार एफआईआर होता है, कई सारे मैम चार्जेस एक आदमी के ऊपर लगते हैं, तो मतलब कुछ फेरा के लगते हैं, कुछ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लगते हैं, 1-2 मर्डर को, मतलब कई सारे मैम इन्वॉल्व होते हैं उसमें मैम। तो फिर उसके ऊपर मान लीजिए चलेगा तो फिर सारा का सारा एक्सक्लूसिवली होगा ना मैम, एक ही होगा ना फिर, कि अलग से फिर फेरा का फिर अलग से तो हम चला नहीं देंगे बाद अलग में। से चलता है, अलग से चलता है बेटा। जैसे मान लो तुम्हारी पीएमएलए की जो कोर्ट्स होती है ना। तो फिर मैम इसका मतलब क्या हुआ, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम हाँ ऑफेंस? क्या? फिर मैम इसका मतलब सेम ऑफेंस का मतलब मैम क्या हुआ मैम फिर? सेम ऑफेंस मतलब एक ही ऑफेंस। जैसे मान लो फेरा के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं होगा, 2 बार कन्विक्शन नहीं होगा, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक ही एक्ट अलग अलग ऑफेंसेस के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है तो हर एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। मैम मैंने मर्डर कर दिया, मैंने चोरी करी, मैंने मर्डर भी कर दिया मैम। जैसे मान लो तो कोई किसी के घर में घुसा, वो चोरी का सामान लेकर के भी भागा और मार के भी चला गया, तो 2 ऑफेंसेस हो गए ना। हाँ मैम, एफआईआर तो एक ही हुआ ना मैम। एफआईआर इसमें एक इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ही आईपीसी के एक ही उसमें कवर्ड है, एफआईआर तो एक ही होगी। लेकिन अभी जैसे मान लो मैंने तुमको ये बताया ना कि कोई अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है दहेज के लिए, उसको मारता पीटता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया, जब तुम देखना, जब तुम लोग भी वकील बनोगे ना, तो इसमें 3 जगह जाता है, ये आईपीसी में जाएगा, ये डीवी एक्ट में जाएगा और ये तुम्हारा डाउरी में जाएगा। हाँ तो मैम जाता है मैम। 3 अलग अलग ऑफेंसेस हैं। तो अगर एक कोर्ट कॉम्पिटेंट है उन तीनों मैटर को देखने के लिए तब तो एक कोर्ट देखेगी। लेकिन जहां पे कुछ मैटर्स को देखने के लिए अगर स्पेशलाइज कोर्ट होंगी ना, तो उसके 2 कोर्ट में पैरेलल केसेस चलेंगे। जैसे पीएमएलए होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये स्पेशलाइज कोर्ट्स होती हैं, ये वही देखती हैं। मेरी बात समझ में आई ना? हाँ ना मैम। देखी नहीं भाई, मेरी बात समझ में आई ना तुमको अब? हाँ तो मैम। एक कोर्ट कॉम्पिटेंट है, जैसे मान लो कि किसी में मिनिमम पनिशमेंट ही 10 साल का है, तो जो 7 साल तक के ट्रायल को देख सकता है वो सीजीएम उसको कैसे देखेगा? तो एक मैटर सीजीएम के यहाँ चलेगा, दूसरा किसी और कोर्ट में चलेगा। तो अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो एक ही कोर्ट में तीनों चारों मैटर चलेंगे। लेकिन अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है और अलग अलग कोर्ट्स उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो वो अलग अलग कोर्ट में जाएगा, एक बार एक कोर्ट में जाएगा, दोबारा दूसरे में, और तीनों पैरेलल चलते हैं। हाँ मैम, कई बार मैंने मैम ऐसा देखा है मैम कि जैसे मर्डर आदमी कोई कर देता है तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट भी लग जाता है मैम, और वो जो मर्डर किया 302 और आर्म्स एक्ट दोनों लगते हैं मैम। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि मैम आदमी मतलब बेल ले लेता है मर्डर वाले केस में और आर्म्स एक्ट का वो इंक्लूड नहीं कर पाता है उसमें, तो फिर से मैम उसमें भी लेना पड़ता है मैम। एग्जैक्टली बिल्कुल लेना पड़ेगा, तुमने बिल्कुल सही बोला। जैसे कोई इलीगल आर्म लेकर के किसी ने मर्डर किया तो एक ऑफेंस तो तुम्हारा बना मर्डर का, दूसरा बना आर्म्स एक्ट का। अब अगर दोनों मर्डर तो नॉन बेलेबल है, मान लो नॉन बेलेबल है, आर्म्स एक्ट का मुझे मालूम नहीं वो भी नॉन बेलेबल होगा, दोनों में अलग अलग बेल लेनी पड़ेगी और दोनों में अलग अलग ट्रायल चलेगा और दोनों में अलग अलग पनिशमेंट होगा। ये बात मतलब अलग अलग ट्रायल चलेगा मतलब अलग अलग एक्ट में ट्रायल चलेगा। अब वो एक ही कोर्ट कॉम्पिटेंट है दोनों ट्रायल को चलाने के लिए या 2 अलग अलग कोर्ट कॉम्पिटेंट है, ये डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर किस एक्ट में धारा लगाई गई है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तुम लोग को?
हाँ मैम, हाँ जैसे आर्म्स एक्ट का तुमने आईपीसी का बताया ना, एक ही क्राइम है लेकिन दो अलग अलग लेजिस्लेशन में, एक ही एक्ट है लेकिन दो अलग अलग लेजिस्लेशन में क्राइम्स के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है, तो दोनों में बेल लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम लोग कई बार देखते होगे ना कि आज यहाँ बेल लिए, फिर वहां बेल लेने गए, फिर वहां की कोर्ट ने बुलाया, या ऐसे ही चलता है, क्योंकि मैम अलग टूल अलग में वो अलग अलग ऑफेंसेस के रूप में आइडेंटिफाइड है। मैम यहाँ मैम ऑफेंस मेंशन करा, इसका मतलब मैम एक ऑफेंस, एक सेक्शन। ठीक, हाँ एक ऑफेंस। जैसे जो तुमने बोला ना, आर्म्स एक्ट में दो बार नहीं वो प्रोसिक्यूट और कन्विक्ट होगा। मर्डर के लिए दो बार प्रोसिक्यूट और कन्विक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मारा है किसी को, हथियार इलीगल है, तो आर्म्स एक्ट और मर्डर दोनों के लिए उसका अलग अलग, वो दोनों के लिए कन्विक्शन होगा उसका। जबकि मारा एक ही सीरीज ऑफ एक्ट में है, गया और मार दिया, लेकिन जो एक्ट है ना वो अलग अलग लेजिस्लेशंस में क्राइम के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है। आर्म्स एक्ट के लिए एक है और तुम्हारा उसके लिए मर्डर के लिए दूसरा आईपीसी है। ठीक मैम कई बार मैम ऐसा होता है मैम कि 120 बी लग जाता है मैम और 302 लग जाता है, तो 302 120 बी का तो साथ ही मैम चलता है ज्यादातर मैम। तो कोर्ट कॉम्पिटेंट, बता तो रही हूँ, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो दोनों चलेगा ना, एक ही कोर्ट में सारे चलेंगे। लेकिन अगर स्पेशलाइज कोर्ट बन जाती है तो अलग अलग कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो जो बहुत सारे केसेस में फंस जाता है वो मर जाता है उसी में घूमते घूमते, क्योंकि आपको इतना थका देता है सिस्टम, आप पागल हो जाते हो। यहाँ बेल लोगे, वहां जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोर्ट हाँ कॉम्पिटेंट है मैम, उन सारे डील करने के लिए जो उसके ऊपर लगे हैं, तो एक ही कोर्ट में सारे चार्जेस चलेंगे। लेकिन अगर कोर्ट अलग अलग कॉम्पिटेंट स्पेशलाइज कोर्ट्स बनी हुई है, या एक कोर्ट सारे चार्जेस को डील करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अलग अलग कोर्ट्स में उसका ट्रायल चलेंगे। जैसे हाँ एनडीपीएस पकड़ा गया, उसके साथ साथ बंदूक भी मिली है, अब आर्म्स एक्ट में भी गया। अब एनडीपीएस की स्पेशलाइज कोर्ट्स होती हैं, एनडीपीएस की कोर्ट आर्म एक्ट को नहीं देखेगी। आर्म एक्ट के लिए आपको दूसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा। एनडीपीएस की कोर्ट सिर्फ जो है एनडीपीएस को देखती है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। समझ में आई ये बात? यस मैम, यस मैम। तो ठीक है, अब ना क्लॉज 3 तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसको कल खत्म करेंगे पूरा आर्टिकल 20। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम इफ एक्यूज्ड इज एक्विटेड इन अ ट्रायल, मैम फिर उसके दोबारा मैम मतलब केस रीओपन हो जाता है मैम, वो भी तो एक दोबारा से ट्रायल ही होगा, तो मैम डबल ट्रायल नहीं हो रहा है? नहीं, तो नहीं, तो ट्रायल, इसमें वो ट्रायल प्रोहिबिटेड है जिसमें प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन में एंड हुआ है। अगर प्रोसिक्यूशन एक्विटल में एंड हुआ है तो रीट्रायल हो सकता है। वही तो मैं बता रही थी देर से, प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, समझ गया ना? यस हाँ, जो प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन में या पनिशमेंट में एंड हुआ है वो प्रोसिक्यूशन